16वां लेक्चर है ये टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का और क्लोजर ऑफ ए सेट का 7वां लेक्चर है। आइए देखें, इसमें हम लोग डेंसनेस देखेंगे। कुछ डेफिनेशन पहले लिखा जाए। नंबर 1, a set A properly contained in R is said to be dense in R or dense everywhere or simply dense if A closer equal to capital R, यानी कि A के सारे एडहेरेंट पॉइंट्स अगर हम निकालें तो सब सारे रियल नंबर आ जाए। ऑल रियल नंबर्स आर द एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, तब हम बोलेंगे डेंस, बहुत ही घना है। एग्जाम्पल, Q is dense because Q closer equal to Q union D of Q इक्वल टू Q यूनियन D of Q। आपको याद होना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। R होता है और Q और R का यूनियन कौन होगा? बड़ा वाला R, क्योंकि Q इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन R। Q R के अंदर होता है, इसलिए दोनों का यूनियन कितना हो गया? R। इसी प्रकार से R भी डेंस है। R is dense because R closer equal to R union D of R equal to R union R equal to R। Dense everywhere, dense in R या simply dense। नंबर 2, nowhere dense की बात करेंगे। Number 2, a set A properly contained in R is said to be nowhere dense in R, nowhere dense in R, nowhere dense if exterior of A का क्लोजर R के बराबर हो। एग्जाम्पल empty set is nowhere dense because exterior of empty set closure is equal to, पहले तो आप exterior of empty set लिखिए। exterior of empty set क्या होगा? empty set के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा और तब ये क्लोजर वाली डंडी लगाइए। इक्वल्स टू एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? यूनिवर्सल सेट, इसका इंटीरियर और फिर इस पे क्लोजर। आर इंटीरियर आर के बराबर होता है, तो ये हो गया आर क्लोजर आर के बराबर होता है। आर क्लोपेन सेट है ना, आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है। ए इज ओपन implies that and implied by A interior equal to A. A is closed implies that and implied by A closer equal to A. Since R is open, therefore R interior equal to R. Since R is closed, therefore R closer equal to R। तो ये रहा एक्सटीरियर ऑफ फाई होल क्लोजर R के बराबर है, इसलिए फाई नोवेयर डेंस होगा। नंबर 3, a set A is said to be relative to A is dense relative to another set B if B is subset of A closure. B is subset of A closure. Example,
R is dense relative to Q, because Q is subset of R closer, that is Q is subset of, अब इस सबसेट में प्रॉपर सबसेट लगाई, इक्वलिटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबसेट ऑफ R, है ना, सही बात, ये सही बात है। अब एक और है फोर्थ, डेंस इन इटसेल्फ, fourth, A is called dense in itself, if A is subset of D of A। ये बहुत आसान है याद करना ना, A is dense in A ऐसे याद कर ले। एग्जाम्पल, Q is dense in itself because Q is subset of D of Q, that is Q is subset of R, D of Q R होता है, इक्वलिटी हटा दें। R is dense in itself because R is subset of D of R, that is R is subset of R। Phi भी dense in itself होता है, वाह भाई, Phi is dense in itself because Phi is subset of D of Phi, D of Phi Phi होता है, that is Phi is subset of Phi, Phi खुद का सबसेट होता ही है। नेक्स्ट, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, या चलो क्लोज्ड ही लिख देते हैं पहले, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डेंस इन इटसेल्फ, डेंस इन इटसेल्फ because closed interval AB is subset of D of closed interval AB, that is closed interval AB is subset of, closed interval AB का derived set closed interval AB ही होता है। next, open interval AB, open interval AB is dense in itself, is dense in itself because open interval AB is subset of derived set of open interval AB, that is open interval AB is subset of derived set of AB, open interval AB closed interval AB होता है। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ हटा दें, ये हटा दें। ठीक, तो इतने एग्जाम्पल हो गए, क्यू आर एम्प्टी सेट क्लोज्ड इंटरवल हो, पांच एग्जाम्पल हो गए। परफेक्ट सेट, नेक्स्ट, perfect sets. A set A properly contained in R is said to be a perfect set if A is equal to D of A। इसी को थोड़ा हम अर्थी चले, that is if A is subset of D of A and D of A is subset of A, तभी तो इक्वलिटी होगी ना। डेफिनेशन लिख दिया हमने, लेकिन उसी डेफिनेशन को देखिए, खोद करके उसमें से एक अर्थ और निकालना है। दैट इज इफ, इसका मतलब अभी बताए थे, ए इज डेंस इन इटसेल्फ
A is dense in itself and, और इसका मतलब आप जानते हैं A is closed, ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, A is closed if and only if D of A is subset of A। तो ये डेफिनेशन हो गया ना, A is said to be perfect set if A is closed and A is dense in itself ना। तो अब डेफिनेशन देखो, मैं से लिखना, अ क्लोज्ड सेट, a closed set is called a perfect set if it is dense in itself, if it is dense in itself। बोलो ठीक है कि नहीं? डेफिनेशन ये था, इसी को पछोड़ के फटक के हमने ये डेफिनेशन निकाल लिया। A closed set is called a perfect set if it is dense in itself, यानी किसी भी सेट को आप परफेक्ट सेट कह रहे हो तो उसका पहला गुण तो ये है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरा गुण ये है कि वो डेंस इन इटसेल्फ होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइव इज अ परफेक्ट सेट बिकॉज, इसी से काम चला लो, फाइव इक्वल टू डी ऑफ फाइव है ना, एज डी ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव। फाइव फाइनाइट सेट है, आप जानते हैं फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। नंबर 2, आर इज अ परफेक्ट सेट बिकॉज R equal to D of R, as D of R R होता है, हम जानते हैं। थर्ड, closed interval AB is a perfect set because closed interval AB is equal to D of closed interval AB, as D of closed interval AB closed interval AB होता है। ये देखिए, 3 परफेक्ट सेट के एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद होना चाहिए। ओपन इंटरवल AB परफेक्ट सेट नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं होता है। हम जानते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। परफेक्ट सेट वही होगा जो पहला गुण तो क्लोज्ड हो और दूसरा गुण डेंस इन इटसेल्फ हो, यानी किसी भी ओपन सेट को आप परफेक्ट सेट कहने की भूल न करिएगा। परफेक्ट सेट क्लोज सेट की वैरायटी है। दूसरे शब्दों में यूं समझें कि परफेक्ट सेट इज ए वैरायटी ऑफ, इज ए काइंड ऑफ, इज ए टाइप ऑफ क्लोज सेट। इसके बाद कुछ छोटे मोटे थ्योरम देख लें। थ्योरम, A is nowhere dense, A which is proper subset of R is nowhere dense if and only if A interior has no, sorry, A closure has no interior points, no interior points। A closure के पास अगर कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ए के क्लोजर के पास यदि कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ए कैसा होगा? नोवेयर डेंस होगा। प्रूफ, इफ पार्ट, let A closure has no interior points, let A closure have no interior point, then A closure का इंटीरियर बनाइएगा तो खाली आएगा, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। एंड दिस इंप्लाइज दैट R माइनस A क्लोजर का इंटीरियर इक्वल टू R माइनस एम्प्टी सेट।
दिस इंप्लाइज दैट या यहां पर लिख दीजिए r माइनस फाइव कितना होगा, r। थोड़ी देर के लिए इसको लिख दीजिए r माइनस बी इंटीरियर इक्वल टू r वेयर, सुविधा के लिए हमने b लिखा है किसकी जगह पे, ए क्लोजर की जगह पे। अब वो इंटर रिलेशन याद कीजिए इंटीरियर और क्लोजर का, तो r माइनस बी इंटीरियर कितना होगा, r माइनस बी होल क्लोजर इक्वल टू r, r माइनस बी होल क्लोजर इक्वल टू r। अब b की वैल्यू लिख दें, दैट इज r माइनस b की जगह क्या लिख दें, ए क्लोजर, r माइनस ए क्लोजर, फिर होल क्लोजर इक्वल टू r, इंप्लाइज दैट ये क्लोजर वाली डंडी हो गई। अब उसके नीचे फिर इंटर रिलेशन का इस्तेमाल करिए, r माइनस ए क्लोजर बराबर क्या होगा, r माइनस ए होल इंटीरियर, r माइनस ए होल इंटीरियर, r माइनस ए होल इंटीरियर और फिर उस पर क्लोजर इक्वल टू r, इंप्लाइज दैट r माइनस ए माने ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का क्लोजर इक्वल टू r, और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्सटीरियर होता है, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए होल क्लोजर इक्वल टू r, एंड दिस मीन्स बाय डेफिनेशन a इज नोवेयर डेंस, a इज नोवेयर डेंस, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमको लगता है ऐसी बैक गियर लग जाएगा, कुछ भी विशेष नहीं है उसमें। हम यही कर दे रहे हैं ऐसे बॉक्स बना के, ओनली पार्ट यहां शुरू करें। लेट ए बी nowhere dense, nowhere dense, then by definition exterior of a whole closure equal to r। अब इसी को इंप्लाई कराते चलिए, एक्सटीरियर ऑफ ए माने ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होल क्लोजर इक्वल टू r, इंप्लाइज दैट r माइनस ए होल इंटीरियर होल क्लोजर इक्वल टू r। इंटर रिलेशन इस्तेमाल करिए, r माइनस ए होल इंटीरियर बराबर होता है r माइनस ए क्लोजर होल क्लोजर इक्वल टू r। इसे थोड़ी देर के लिए आप b समझ लें, b तो r माइनस बी होल क्लोजर बराबर होगा r माइनस बी इंटीरियर, दिस इंप्लाइज दैट r माइनस ए क्लोजर का इंटीरियर इक्वल टू r। इंटर रिलेशन इस्तेमाल किए हम लोग, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लें, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हो जाएगा ए क्लोजर का इंटीरियर इक्वल टू एम्प्टी सेट। का मतलब क्या हुआ, ए क्लोजर हैज नो इंटीरियर पॉइंट्स, है ना, क्योंकि ए क्लोजर का इंटीरियर खाली निकल गया। ए क्लोजर के इंटीरियर में कौन होगा, ए क्लोजर के इंटीरियर पॉइंट्स, वो खाली डिब्बा है, खाली सेट है, कोई इंटीरियर पॉइंट। ये था प्रूफ इसका, ध्यान रखिएगा। इस प्रूफ में हमने इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल किया है, इंटर रिलेशंस बिटवीन ए क्लोजर एंड ए इंटीरियर। तो लास्ट में आप एक जगह लिख लो कहीं, इसका हमने इस्तेमाल किया है, r माइनस ए इंटीरियर इक्वल टू r माइनस ए होल क्लोजर, r माइनस ए क्लोजर इक्वल टू r माइनस ए होल इंटीरियर। ये इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके ये पार्ट ओनली पार्ट प्रूव किए गए हैं। एक थ्योरम और देखें, derived set of A is perfect
D of A is perfect if A is dense in itself. A is dense in itself. प्रूफ केवल इफ लिखा है, मतलब एक ही पार्ट वाला प्रूफ है. इफ माने तो उसको लिखे फिर लेट, यही गिवन हो गया ना, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया. डी ऑफ ए इज परफेक्ट में क्या लिखते हो? लेट ए बी डेंस इन इट सेल्फ, डेंस इन इट सेल्फ, देन बाई डेफिनेशन ए इज सबसेट ऑफ डी ऑफ ए, एंड सो D of A is subset of D of A. Number 1. ठीक है ना भाई? We know that D of A is closed by nature, and also we know that F is closed if and only if D of F is subset of F. यानी अगर F closed है तो D of F का सबसेट होगा. इसको आप F समझ लीजिए. F is closed, therefore D of F is subset of F. Therefore D of A is subset of D of A. Number 2. 1 और 2 को गौर से देख ले, बस हो गया. फ्रॉम 1 into D of A equal to D of A, यानी कि D of B equal to B. तो B equal to D of B माने B is perfect set. This implies that D of A is a perfect set. एक देखो हमें और एग्जाम्पल ही मिला कि किसी भी सेट का जो डेराइव्ड सेट होता है वो परफेक्ट सेट होता है, और क्लोज सेट तो होता ही होता है. तो हम बता ही चुके हैं कि जो भी परफेक्ट सेट होगा वो क्लोज सेट की वैरायटी ही होगा, उसका एक काइंड होगा. किसी भी सेट का डेराइव्ड सेट परफेक्ट सेट होगा. एक न्यूमेरिकल जरा देख लिया जाए लिमिट पॉइंट का. एग्जाम्पल लिमिट पॉइंट पर, लिमिट पॉइंट टू फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 कामा सो ऑन कामा 1/n कामा सो ऑन. तो लिखा है सेट, लेकिन दरअसल ये सीक्वेंस है. सेट के एलिमेंट सीक्वेंसिंग में है, इन द ऑर्डर ऑफ ए सीक्वेंस लिखे गए है कि नहीं. देखो 1/n nth टर्म हो गया. n इक्वल टू 1 रखने से फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 रखने से सेकंड टर्म, n इक्वल टू 3 रखने से थर्ड टर्म, वगैरह वगैरह आपको मिल रहा है. लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन आप याद करें, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं. वी नो दैट कोई भी रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट तब होगा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए. जो ए दिया है निश्चित रूप से प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर है, प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर. If every epsilon neighborhood of X has
infinite number of points, infinite number of points of A. That is, ये संभव कब है? एप्सिलॉन नेबरहुड समझते हो ना? ये पॉइंट है x, इधर थोड़ी लेंथ इधर थोड़ी लेंथ काट लें, और ये थोड़ी जो आपको दिख रहा है ना, इससे भी थोड़ी इससे भी थोड़ी, क्योंकि एवरी लिखा है ना, जितने भी ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स हैं सबकी बातें हो रही हैं। लेंथ हम और भी कम कर सकते हैं। सबके पास ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन infinitely many points of A are accumulated near X. That is, infinitely, या ऐसे लिख दो, accumulation का मतलब ही होता है ढेरी, अंबार, infinite हो गया अपने आप। That is, points of A are accumulated नियर एक्स। अब आप फील करें, जब एन को आप ट्रिमेंडसली बहुत बड़ा कर दोगे, एन की वैल्यू को अगर आप 10,000 करोड़ लिख दें तो 1/10,000 करोड़ कितनी छोटी संख्या हो जाएगी, समझ सकते हैं ना? और 1/50,000 करोड़, 1 और करिए 1 लाख करोड़, 1/10 लाख करोड़, 1/100 लाख करोड़। तो ये जो हम संख्याएं बोल रहे हैं, ये सब की सब जीरो के बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे, जीरो के बिल्कुल सटके होंगे। अब जीरो नहीं होंगे लेकिन जीरो के बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। तो आप फील करिए कि जीरो के करीब कितने नंबर्स हो सकते हैं। 1/n, n को खूब बड़ी बड़ी संख्या बोलते चलिए। n = 10 to the power 10, n = 10 to the power, और बड़ी बोलिए, n की वैल्यू और बड़ी बोलिए। तो 1/n की जगह बोलिए 10 to the power 1000, 1/10 to the power 10-20,000, 1/n to the power 1/10 to the power 1 लाख। ये ऐसे बोलते चलिए, इनकी बड़ी बड़ी वैल्यूज बोलते चलिए, पावर लगा लगा कर 10 to the power 10 to the power। और ये आप बोलो कितने नंबर बोल सकते हो, आप फील करो ना कितने नंबर बोल सकते हो, तो आपको खुद फीलिंग होगा, सर जीवन भर बोलते ना, माने हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स इस तरीके से बोल सकते हैं। ये सब के सब बड़े स्मॉल नंबर्स हैं और ये सारे के सारे एक्युमुलेटेड होंगे किसके पास? जीरो के पास। सो जीरो इज द लिमिट पॉइंट। कोई लिमिट पॉइंट निकालने का फार्मूला नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं कि सूत्र लगा दें लिमिट पॉइंट निकल आवे। लिमिट पॉइंट ऐसे ही फील करके निकालना होता है। आपको ये महसूस करना होता है कि कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसके पास सेट के असंख्य बिंदु एक्युमुलेटेड है, माने असंख्य बिंदुओं की ढेरी लगी हुई है, असंख्य बिंदु वहां पे संचित है, असंख्य बिंदुओं का गुच्छा है। इतने पॉइंट जीरो के पास है कि जीरो से तनिक इधर जाकर के हम एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं तो उसमें कितने पॉइंट्स पकड़ में आ जाए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पकड़ में आ जाए ए के। क्लियरली जीरो इज लिमिट पॉइंट, जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, बिकॉज लिखेंगे तो वही हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जीरो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। ये एक एग्जाम्पल बताना आपको जरूरी था। हालांकि सीक्वेंस का केस है, सीक्वेंस में आप लिमिट पॉइंट पढ़े हुए हैं, सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिमिट पॉइंट जरूर पढ़ा होगा। लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट बड़ा रोचक होता है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है इसका। ठीक है भाई, तो हम समझते हैं आपको मजा आया होगा जरूर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करते समय ज़रा ध्यान रखो, जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन भेज देते हैं कि इसको आप सॉल्व करो, तो अब आप बताओ हम कैसे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करें। क्या आपके क्वेश्चन के सलूशन के लिए हम नया वीडियो डालेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट ख़राब हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन ना पूछिए हमसे, कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो, वो आप हमें दीजिए। जैसे एक बच्चे ने सलाह दिया था कि सर क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनाइए, तो मैंने उसको आंसर दिया कि बेटे क्लास वाइज प्लेलिस्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में अंतर है, और वैसे भी सिलेबस हर 3 साल 4 साल 5 साल में एक बार बदल जाता है, रिवाइज हो जाता है। कोई चैप्टर फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर में चला गया, थर्ड ईयर का सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में चला गया, ये सब होता रहता है। तो क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनाएंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए प्लेलिस्ट हमेशा बनेगा टाइटल वाइज। हम टाइटल को उठाएंगे, उससे प्लेलिस्ट बनेगा, वो चाहे किसी क्लास में हो, अपने अपने हिसाब से लड़का पढ़ लेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमसे कहा करें, क्योंकि हम सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन हम आपको देंगे कैसे, प्रोवाइड कैसे करेंगे। यूट्यूब पर उसके लिए हम अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। अब फिर हम इतना ज़्यादा आपको करा दे रहे हैं, इसको ट्रेनिंग कहते हैं ना मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का मतलब ये थोड़ी है कि आपके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन कोई दे दे तब उसको आप पढ़ें। सोल्यूशन पढ़ने की चीज़ थोड़ी होती है मैथमेटिक्स में, ये तो अभ्यास है। हम लोग सोल्यूशन इसलिए कराते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इस शऊर आपको आ जाए। और इतना ट्रेनिंग हम दे रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से ट्रेंड हो जाइए हमारे वीडियोस के हिसाब से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर बुक्स में लिखी हुई बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना शुरू कर देंगे और तमाम प्रॉब्लम्स आप खुद ब खुद टैकल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।